बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो हिंडनबर्ग और अडानी वाला मामला था उसमें क्या हुआ, पहले सुनते हैं। Since the Supreme Court has taken a view that the report on 20 out of 22 transactions is clear, I think it's a clean check definitely for Adani. There is no doubt on that. That's the first takeaway, I would say. The second takeaway, and I think it's more important for our country and also as a whole, that the SEBI regulatory system and the regulations have been held to be a strong, robust system. Thirdly, the court has raised a concern about people relying on reports or newspaper articles, and since you're all media personnel, that's a little indication for you as well to be a little more accurate. The court has raised a concern that merely on newspaper articles and reports, one should not be rushing to court, especially in PIL, because PIL is an important, a very crucial jurisdiction for this country. And lastly, for two, of course, the court has said 3 months' time for SEBI to investigate, no question of an SIT. So these are the 5 real major takeaways. तो एक वकील साहब हो गए, एक और वकील साहब का हिसाब किताब है, वो भी कुछ कह रहे हैं, सुन लें पहले, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। Well, I would say it's a complete exoneration of the Adani Group. The salient features of the judgment pronounced today are as follows. One, that the court has trusted the SEBI investigation. The SEBI investigation is complete in 22 out of 24 instances. The remaining 2 will also be finished by SEBI within 3 months. The court has said that it trusts SEBI. It does not warrant any CBI or any other police investigation as demanded in the 4 petitions before the Supreme Court. The Supreme Court has also said that we will not pass any order directing framing of any new regulations as was demanded by the petitioners by SEBI. The Supreme Court has trusted SEBI to do whatever it has to do, and no other material was found to warrant any other investigation. And therefore the matter has ended, and the SEBI will complete the second 2 instances investigation within 2 months. So one of the concerns that was raised by the petitioners is that there has been a dilution of the existing framework, regulatory framework to allow this. Has that question been answered sufficiently? The court has answered clearly by saying no further regulation need to be framed. The regulation already there. If SEBI wants, it can do it. So the court said we are not going to direct SEBI to make any further regulations, and the regulatory framework is fine as of now, and it's up to SEBI to do whatever it wants. So the PI had cited the PI had cited reports that said it was the OCCRP report. Here the Supreme Court has said that SEBI's investigation will take primacy and that they can only supplement cannot replace See, as I said in the beginning, the court. तो ज़रा समझिए सब हुआ क्या। हिंडनबर्ग ने सटोरिया, शॉर्ट सेलर सटोरिया ने एक फर्जी रिपोर्ट कहीं से तो भी लिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर उसने कह दिया कि हमने देखा अडानी के पास जो है उतना, अडानी ने लेखा जोखा जो दिया वो गलत लेखा जोखा दिया, उसकी बैलेंस शीट जो है वो गलत है। अपने आप में बहुत बड़ा आरोप था। 4,000 के आसपास चलता हुआ अडानी का शेयर लुढ़क कर सीधे 1,070 के आसपास आ गया था। 1,070 के आसपास हमारे तमाम सारे जो हमारे मित्र हैं, हमारे चैनल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने तमाम सारे लोगों ने बाय किया था। हमने यहाँ से खुली टिप दी थी, आंख बंद करके खरीद लीजिए। और जिस समय पर लोगों ने कहा था अडानी में हाथ मत डालना, कंपनी कहीं बंद हो जाएगी, तब हमने कहा था कोई टेंशन नहीं, आप आराम से लीजिए इसके शेयर। आज सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई गई थी और PIL में ये कहा गया था सेबी से हटा के इसकी SIT बना दो। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जो है सेबी को दिया ये पूरा मामला कि सेबी इसको देखे, सेबी को क्या करना और क्या नहीं करना है, राइट। सेबी के पास जाने के बाद क्या होता है जरा वो भी देखें। सुप्रीम कोर्ट ने SIT या CBI को क्यों नहीं दी अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच, जानिए वजह। एकदम स्पष्ट कहा है, SIT या CBI या SIT को ट्रांसफर करने से इनकार, सेबी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश। अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखा कि जो जांच जो सेबी को दी थी, सुप्रीम कोर्ट किसको जांच देगी। जब ये मामला गया तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दे दिया कि सेबी इसकी जांच करे। सेबी ने तकरीबन 22 पॉइंट्स पे अब तक फाइंडिंग दी, बिल्कुल परफेक्ट फाइंडिंग दी है। और सेबी की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार इसने अडानी ग्रुप ने कुछ भी गलत नहीं किया, जैसा कि बताया जा रहा था विश्व बाजार में कि बहुत गलत किया, फलान किया, ढिकान किया। एक डंका पीटा जा रहा था, झूठा डंका पीटा जा रहा था। 2 कमेंट ले लूँ जरा पहले। राजकोट 2000 में जब का जवाब दे, धन्यवाद, सबका कटेगा भैया। चेतन शर्मा जी क्या कह रहे हैं, टिप फॉर US कैनेडा स्टॉक इन्वेस्टर, कीप आई ऑन BTI, गुड पोटेंशियल फॉर रिफॉर्म्स। भैया मेरे को आइडिया नहीं है, कोई चक्कर मत पड़ना है ना, ऐसे कोई भी स्टॉक्स जो है ना उसके बारे में। और कृपया करके एक निवेदन और है, ऐसी टिप ना दें किसी को भी, है ना। सो मेरा निवेदन है आपसे, राइट, क्लियर है ना। चलिए, तो अब क्या, तो अडानी को लेकर जो है मामला गया कोर्ट में। कौन लेकर गए, प्रशांत भूषण। अब प्रशांत भूषण जब लेकर गए तो मामला सेबी को चला गया, सेबी जांच कर रही है। फिर अचानक से इनको एक कीड़ा काटा, बोले नहीं ऐसे नहीं। फिर एप्लीकेशन लेके पहुंच गए, बोले इसकी जांच CBI से कराओ या SIT से करा लो। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है बोले उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों कराए, सेबी अच्छा काम कर रही है।
कंटिन्यूस अपडेट दे रही है सुप्रीम कोर्ट को, आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं बहुत आवश्यकता है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी अगर हम इस मामले को लेकर ही जाएंगे। तो भाई किसके पास लेकर जाएं? तो बोले नहीं, इसकी जो जांच जो है ना वो किसी विदेशी एजेंसी से करा लो। भाई कौन सी विदेशी एजेंसी से करा ले भाई? तो बोले आप एक काम करो, भारत में तो इसकी सही जांच हो नहीं पाएगी क्योंकि अडानी अंबानी की सरकार है, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक है, तो जांच जो है वो बाहर से हो। चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट भी सदके में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किससे जांच हो, तो उन्होंने एक नाम बताया, OCCPR। बोले इससे जांच करा लो। जैसे उन्होंने बोला OCCPR से जांच करा लो, तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने बताया, बोले OCCPR तो वही है जिसको फंडिंग यही लोग करते हैं, ये वही जॉर्ज सोरस वाली फंडिंग वाली कंपनी है, ये वही है, चलती फिरती एक दुकान है, जैसा वो शॉर्ट सेलर चलता फिरती एक दुकान है। उसने फ़ायदा कमाना था, उसने फ़ायदा कमा लिया, शॉर्ट सेलिंग करी और अडानी से पैसा उसने बना लिया। 4000 पे शॉर्ट सेलिंग करी थी, 1070 1050 पे जाके उसने कवरिंग कर ली, तो उसने तो बना लिया अपने 3000 रुपये पर शेयर के हिसाब से। यहाँ के लोग निपट गए जो मूर्ख लोग थे, जिन्होंने बेचे होंगे, भयंकर नुकसान में गए होंगे, थोड़े बहुत नहीं, क्योंकि माल खरीदा गया तो बिका भी होगा, किसी ने बेचा भी होगा, है ना। और जो खरीदने वाले थे वो हमारी आपकी तरह कोर इन्वेस्टर थे, प्योर इन्वेस्टर थे, तो गए काम से। तो कहते हैं OCCPR को जांच दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, बोले किसी भी प्राइवेट दुकान पे हम भरोसा नहीं करेंगे, हिंडनबर्ग पर भी हम कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि तथ्यहीन, क्या तथ्यहीन रिपोर्ट है उनकी, उसमें कोई तथ्य नहीं है रिपोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 3 महीने का समय दिया है सेबी को कि आप इसकी जांच करके पूर्ण कर लीजिए। लेकिन इस बीच में देखा जाए तो एक तरह से जो है क्लीन चिट मिली गई है ना। ये चाह रहे थे कि OCCPR से करा लें, जॉर्ज सोरस की एजेंसी से करा लें, तो जॉर्ज सोरस हमारे हिसाब से कुछ लिख देगा, पर हुआ नहीं ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, बोले नहीं, जॉर्ज सोरस की किसी भी NGO या किसी भी उसकी कंपनी से काम नहीं कराना, हमारे यहाँ सेबी है, सेबी काम देखती है और सेबी का ही काम है, सेबी अपना काम कर रही है। दिस इज एज गुड एज कि आप मॉनेटरी करेंसी को लेकर कोई बात आपको करनी हो कि नोट हमको छपवाना, डिज़ाइन कैसा हो, तो RBI ना फाइनल करके कहते हैं हम कि बाहर से कोई लोकल दुकानदार उसको फाइनल कर दे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, एकदम मना कर दिया। ये कह दिया सेबी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बाहर की किसी भी एजेंसी से हम विश्वास नहीं करेंगे, और खासकर प्राइवेट एजेंसी से तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। तो उठाकर जो है फाइल फेंक दी गई, इनकी बात नहीं मानी गई। जांच कब तक पूरी करनी का 3 महीने का समय दिया, वो पहले भी दिया था, बाद में बढ़ा दिया गया था, हो सकता है आगे भी और बढ़ा दे। लेकिन फिलहाल जो है प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें यहाँ पर कहीं कोई खामी नहीं दिखती है। और जो PIL जो लगाई है उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए। साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे किसी भी प्राइवेट एजेंसी हिंडनबर्ग जैसे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बड़े चिंता का विषय है कि भारतीय लोग इस पर विश्वास करते हैं और भारतीय मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेबी की जांच में दखल से साफ इनकार, एकदम क्लियर कट इनकार, साफ इनकार कर दिया। तो भाई मामला तो बिगड़ गया, गए तो थे अडानी को डुबोने, लेकिन कुछ का कुछ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, SIT का गठित करने से भी मना कर दिया, सब तरह से मना कर दिया। अब 3 बटन दिखता होगा, क्लिक करो और लाइक करो। अच्छा सतीश गुप्ता जी, धन्यवाद भैया। तो कुल मिलाकर जो है सेबी ने एकदम सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया, सेबी हमारे यहाँ की एजेंसी है, हमारी भरोसेमंद एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, और हमें अपने सिस्टम पर भरोसा है, ना कि किसी OCCPR पर। हम किसी जॉर्ज सोरस की चलती फिरती दुकान पर, फर्जी दुकान पर भरोसा नहीं करेंगे, और ना ही हिंडनबर्ग पर भरोसा करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सेबी पर संदेह करना, इसका आपके पास कोई ठोस आधार नहीं, फिर भी आप सेबी पर संदेह कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों पर लगाया विराम। विशेषज्ञों ने कहा गड़बड़ी थी ही नहीं, लीजिए हो गया, कल्याण हो गया। विशेषज्ञों ने भी कह दिया गड़बड़ी नहीं थी। तो पूरी पोल जो है इनकी खुल गई। जो एजेंडा जो भारत के खिलाफ चल रहा था वो एजेंडा हो गया फुस। अभी और हो सकता है, लेकिन ये इस बार बड़े गलत फंस गए। और मैं सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही है, मैकेनिज्म बनाने की बात कही है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि विदेशी जो कोई भी आ जाता है और भारत की किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी बोलता वो ना बोल पाए ऐसा। लेकिन देश के बाहर है तो क्या कर सकते हो? हाँ, ये कर सकते हो आप कि विदेशी कोई भी रिपोर्ट भारत में पब्लिश नहीं होगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई ऑपरेटर काम कर रहा है तो उसके लिए गंभीर परिणाम होंगे। उसका लाइसेंस सस्पेंशन से लेकर उसे जेल तक होने का प्रावधान आप डाल सकते हो, राइट? क्योंकि बाहर बैठकर तो कोई कुछ भी कर लेगा। बाहर बैठ के एक पागल कह रहा है कि EVM हैक कर लेते हैं, लेकिन उसकी फटके 74 हो जाती है जब यहाँ बुलाया जाता है हैकाथन में, तो कि भैया हैक कर लो। कमाल है। देखें फिर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी के शेयरों को खरीदने की लूट, 18% तक चढ़ा शेयर, निवेशक गदगद। ओए होए 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 होए,
बताया था कि नहीं बताया था? अडानी को लेकर सही बताया था कि गलत बताया था? नहीं मतलब बता दो, सही था, कुछ गलत तो नहीं बताया। लोग बड़े परेशान थे अडानी को लेकर, ऐसा नहीं पैसा डूब जाए भाई साहब, बहुत ज़्यादा लगा दिया, ऐसा लगा दिया, वैसा लगा दिया। तो भाई कितनी लूट हुई कितनी नहीं, ये मामला तो निपट गया, अभी निपटना बाकी है, पूरा नहीं निपटा, लेकिन निपट जाएगा। तो चलिए देखें कहाँ थे अपन, यहाँ थे अपन, यहाँ। ये क्या भाव है भाई, कौन सा है? अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। अरे नहीं यहाँ नहीं थे भाई, और नीचे आइए, यहाँ थे अपन मार्च में 1070 के आसपास, 1000 रुपये के आसपास। आज कहाँ हैं अपन? जूम 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 जूम, ओ बाप रे 2932 हैं, गजब है भाई। और कहाँ तक हुआ है? तो ये स्थिति है साहब 24 की आपके सामने, ठीक है। अब ज़रा समझिए, अभी तो ये और ऊपर जाना है। टूटा कहाँ से था? 4400 के भाव से। तो जब लगभग 4400 के भाव से टूटा था, 4187 जो दिख रहा है यहाँ पर, तो अभी तो आप आधे रास्ते ही आए हो मोटा मोटा, अभी 1000 रुपये की और चाल बाकी है, 1500 की। लेकिन खैर जिसको फ़ायदा कमाना है वो फ़ायदा कमा सकता है, ठीक है ना। कहाँ से लिया था सर अपन ने? 1000 रुपये के भाव से। कहाँ पहुँच गया? 3000 रुपये। कब लिया था? मार्च में। आज क्या है? अभी मार्च हुआ नहीं है, 1 साल पूरा नहीं हुआ, पैसा 3 गुना हो गया। आनंद आ रहा है? ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो बात है, हमने आपको कईयों बार बोला, आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे सर दुनिया जहान के, वो आपसे उन्माद की, इसकी उसकी दुनिया भर की बात करेंगे, पैसे कोई नहीं कमवाएगा। आपकी सुरक्षा की बात कोई नहीं करेगा कि गाड़ी चलानी है, हेलमेट पहनना, फलाना करना, जेल हो जाएगी, कोई नहीं बताएगा। ये चैनल बस इसी मामले में बिल्कुल अलग है, एकदम अल्हड़पन से चलता है, लेकिन आपके फ़ायदे की बात सोच कर चलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पैसे क्यों दे 500 रुपये, इसलिए दे क्योंकि यहाँ कमाते हैं लोग, इसलिए देते हैं, है ना, इसलिए फ्री नहीं देखना। हाँ बाकी वो फ्री हैं, गाली देने वाले ये सारे, वो तमाम सारे चैनल पड़े, उस पर आप फ्री कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर हैसियत औकात नहीं है। वो तो वहाँ खुशी मना रहे थे, अरे आपके जो राष्ट्रवादी हिंदू वाली चैनल हैं वो तो उस समय खुशी मना रहे थे, अडानी टूट गया, अडानी टूट गया, देखो देखो मोदी ने घोटाला आ गया मोदी का सामने, हैं जो मोदी से कुंठित लोग हैं। और हमने क्या कहा? निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए। तो ये तो अडानी एंटरप्राइजेस का हो गया। शेयर्स तो और भी हैं सर, खाली अडानी एंटरप्राइज थोड़ी है, और हमने तो सारे ही ले रखे थे। कौन कौन से ले रखे देखें, एक और है अडानी ग्रीन, जरा ग्रीन का भी देखें, ग्रीन का क्या हाल है। लाओ भाई, हाँ ये था साहब 460 470 के आसपास मैंने भी लिया था। क्या भाव हो गया? डुबुक 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 डुबुक, तबड़िक 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 तबड़िक, अरे बाबा 1609 रुपये हैं भाई, गजब हो गया। तो अगर इतना भागेगा, 1603 रुपये पे बंद, 1697 पर बंद हुआ, कितना हो गया हिसाब लगाओ? 4 गुना हो गया सर पैसा, 4 गुना। कहा था, बहुत सारे लोग बोले ग्रीन ग्रीन मजा, अडानी एंटरप्राइजेस पे लोगों का कॉन्सेंट्रेशन था। हमने कहा नहीं, सारे घर के बदल डालूँ। अफसोस इस बात का, बहुत जो कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी में नहीं ले पाए, क्योंकि रिस्क और नीचे आने की सोच रहे थे, लेकिन नहीं आ पाए। अब तो गया, अब छूट गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आनंद आ रहा है? क्लियर है? किस भाव पे कहा था ले लो? 470 460 के भाव पे। आज क्या भाव है? 1697। आनंद आ रहा है? पैसे कमा रहे हो? बस आनंद आना चाहिए। कहा था ना सारे के सारे शेयर रॉकेट होंगे, कहा था ये बाउंस बैक करेगा, और अभी तो देखते जाइए, अभी तो बहुत ऊपर जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं सारे के सारे चिपके बैठे रहो, इतना फ़ायदा कमा लिया। जिसको लॉन्ग टर्म नहीं रखना, वो जिसको बाहर जाना वो बाहर निकल सकता है। एक और पे आए जिस पे लोग बोले थे, मुझे बड़ा सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लग रहा था, अडानी पोर्ट्स सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट था, बहुत माल था भाई इसके पास, है ना। क्या भाव था ये? 450 के आसपास। हमने ये भी लिया था। आज क्या भाव है? ओ हो, आज का क्लोजिंग देखें भाई, 1094। ठीक है, डबल से ज़्यादा, 2.5 गुने से ऊपर। आनंद आ रहा है? ये एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा सर आपको, बाकी सब मिलेगी फिजूल की बातें, है ना, पर ये एनालिसिस नहीं मिलेगा। अडानी आज बाहर आया है, सारे रॉकेट हुए शेयर, एक आध नहीं, सारे हवाई जहाज बने। अच्छा टूटा कहाँ से था ये? सोचिए, ये वो शेयर है सर जो 1000 रुपये के आसपास रहा था इससे पहले, इन सारी रिपोर्ट से पहले, और मैंने तो ये सोचा था 1000 रुपये ही बहुत है, लेकिन तो उसको भी तोड़ के निकल गया, अपने पिछले रिकॉर्ड्स को भी तोड़ के निकलता चला जा रहा है।
तो इट वॉज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, कहीं कोई बुराई नहीं थी, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था इस भाव में। जिन्होंने किया उन्होंने पैसा कमाया, जो लोग नहीं किए वो चूक गए। क्योंकि बहुत सारे शेयर मैंने सिर्फ इस आधार पर लिए थे कि टूटे कितने हैं। एक और शेयर है अडानी पावर, ये शायद हमने लिया था कि नहीं, शायद टूट गया, हमसे छूट गया। ये पावर ट्रांसमिशन का शेयर था। ये तकरीबन 140 130 140 के आसपास था। आज क्या भाव है? ये चली सर चाल, तबड़िक 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 घोड़ा दौड़ा, ओ हो, अरे बाप रे बाप, बताइए 544। कहां से चले? नीचे आ जाओ भाई, 140 150 140 से 544। और हमें तो लगा था पावर ट्रांसमिशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलने वाला, क्या कमाए गए। हमने पावर छोड़ दिया था, पावर नहीं लिया था। मैंने कोई ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा, क्यों ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ज़्यादा ऊपर से तो टूटा भी नहीं था, कुछ ऐसे ही इसका हाई 400 450 इसका हाई था। हमने कहा वहाँ से टूटा, कौन सा ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, है ना। चलिए भाई, बल्ले बल्ले हो गई शेयर्स में लोगों की। एक और था अडानी एनर्जी, उसको भी देखें। ये रहा अडानी एनर्जी। कहाँ से चले थे भाई? अरे ये भी तो छोटा शेयर था, पर इतना भी छोटा नहीं था। 600 650 के भाव से चले थे, लेकिन गिरा कहाँ से था जानते हैं? अरे इधर आओ, 3000 के भाव से गिरा था, लगभग 3000 के भाव से। अरे नहीं, और भी ऊपर ये आया साहब, 4000 के भाव से गिरा था। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। 4000 का शेयर हमको कितने मिल रहा था? 600 रुपये पल्ली में। हमने कहा ले लो भाई। आज क्या भाव है? ऊपर में 1200 की शक्ल दिखा चुका है, और आज 1183, आज 1183 पर बंद है। आनंद आ रहा है कि नहीं? नवीन जी आइए, स्वागत है। सब पैसे कमा रहे हैं सर यहाँ तो इंडियन शेयर मार्केट से। मज़ा आ रहा है सर? कोई नहीं बताएगा सर, कोई नहीं बताएगा इतने परफेक्शन के साथ। हमने क्या कहा था? जिसमें रोकने की ताकत हो वो लेना, बच्चों के लिए ले लिया सोच के छोड़ देना। पर यहाँ तो बच्चों के लिए छोड़िए, यहाँ तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। व्हाट साइट ऐप यू यूज टू बाय एंड सी प्राइस ऑफ शेयर्स? नथिंग, कोई भी नहीं, कोई साइट और शेयर वो नहीं देखता मैं, कुछ भी नहीं देखता हूँ, है ना, बिल्कुल नहीं देखता। और जिसको यूज़ करता हूँ, जिसका ऐप वगैरह यूज़ करता हूँ शेयर खरीदने के लिए, वो भी प्रयास करता हूँ कि बैंक का हो, है ना, क्योंकि उसमें सेफ्टी ज़्यादा है। मैं नहीं पड़ता सर जीरो ब्रोकरेज के चक्कर में, मेरे को कोई चक्कर नहीं चाहिए जीरो ब्रोकरेज। मैं बढ़िया ब्रोकरेज देता हूँ, महंगी ब्रोकरेज देता हूँ। देखो सर, सीधी सी बात है, मोटा पैसा कमाता हूँ, मोटी ब्रोकरेज देता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, एकदम क्लियर है। सेफ्टी सिक्योरिटी पहले चाहिए भाई, 2 पैसे दलाली ज़्यादा ले लेना। दलाली है कितनी, काहे के लिए दिमाग लगाना? हम कितना कमा रहे हैं एक एक शेयर पे? 2-2 3-3 हज़ार रुपये। और दिमाग किस पे लगा रहे हैं? किस पे दिमाग लगा रहे हैं? 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे पे। बुद्धि खराब हो गई हमारी। मैं तो ऐसा चक्कर नहीं पड़ता सर, मैं कोई जीरो ब्रोकरेज वाले चक्कर में नहीं पड़ता, हमेशा पूरी ब्रोकरेज देता हूँ। महंगे से महंगा ब्रोकर लो, लेकिन टॉप क्लास होना चाहिए। और अगर कोई बैंक है तो बैंक के थ्रू काम कीजिए, बहुत सेफ होता है। पैसे का मामला है बॉस, इधर उधर हो गया तो लेना का देना पड़ जाएगा, लंबा अमाउंट जाता सीधे एक बार में, समझिए बात को। वरुण जी कहते हैं, प्रणाम गुरु जी, यहाँ पर सेफली विदेश से अदानी के शेयर कहाँ से खरीदे जा सकते हैं और कैसे? बॉस ये तो मुझे भी आइडिया नहीं, पता करके मैं आपको बताऊंगा। खरीदते तो हैं लोग, किस तरह से खरीदते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है ना। ग्लिचेज रहती है सस्ते में। अरे भाई साहब, अपने पास ग्लिच का कोई काम नहीं है। एक बार में सौदा जाता है सटाक, और ये स्वैप हुआ और इधर आ गया फट, गिर के तुरंत। और कोई वो नहीं, मार्केट रेट पे लो सीधे, जो भाव आ रहा है ले लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक और शेयर था, हाँ उसको देखें, वो भी लिया हमने, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। अब देखते हैं उसकी कहानी। ये था साहब अडानी टोटल गैस, जिसके लिए मुझे सब ने मना किया था। 4000 रुपये से गिरा था, बूम सीधे नीचे आके मालूम है कितने पे? कुछ 600 रुपये के आसपास था, हाँ 600 650 रुपये। और सब ने बोला अरे वो अडानी मत लेना, अडानी गैस मत लेना, टोटल गैस। वो सऊदी वाला भी बैकआउट कर गया है। 1150 1200 का भाव दिखा के आज की तारीख में 1099 नहीं, लगभग 1100 रुपये पर बंद है। कितने का लिया था? इसमें भी लगभग डबल कर लिए पैसे। आनंद आ रहा है सर आपको, है ना? ज़रा समझिएगा। ठीक है, चेतन शर्मा जी शुभकामनाएं भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 40% का रिटर्न आया इनका, है ना सर? बहुत कम आया, हमारे यहाँ तो लोगों ने 3-3 गुना पैसा किया है। तो अडानी टोटल गैस, जिसको सब लोग मना कर रहे थे मत लेना मत लेना मत लेना, हमने तो वो भी लिया। अडानी टोटल गैस में भी फ़ायदा। एक जो शेयर नहीं लिया वो था अडानी विल्मार। अडानी विल्मार हमने कहा तेल वेल का काम करता है, एफएमसीजी में, कुछ नहीं, इसकी ज़्यादा कोई इनकम नहीं होने वाली है। उस समय करीब करीब था 350 के आसपास, और आज भी 380 है। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया।
क्योंकि टूटा भी नहीं था ज़्यादा, ये हाथी टाइप शेयर है, ज़्यादा नहीं चलता सर, है ना। इस सबसे पहले जो इसकी जो हिसाब किताब थे वो भी कुछ 400 रुपये, 500 550 के आसपास था, तो कोई ज़्यादा मार्जिन दिखा नहीं। मैंने हर वो शेयर लिया था जो 4000 से 1000 पे आया धड़ाम से, रिस्क ज़्यादा खेलूँ, बाउंस बैक भी तो ज़्यादा ही करेगा, है ना। अब ये कलेजे का काम है, हर किसी के बस की बात थोड़ी है। तो किस किस ने पैसा बनाया और कितना बना लिया आज बताओ यार, आज आ जाओ, खोलो अपनी अपनी पोल, है ना। वैसे भी हम लाइव चैट हटा देते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, बोलूँगा नहीं किसी का भी, लिख दो बस। और टोटल अमाउंट लिख देना आज के भाव से कि कितना पैसा कमा लिया, है ना। इनकम टैक्स वाले थोड़ी है कि कोई दिक्कत आ जाएगी अपने को। तो ये है बॉस, वन एंड ओनली चैनल दैट गिव्स यू 360 डिग्रीज ऑफ न्यूज़। 360 पर काम करते हैं, 360 डिग्री की न्यूज़ आपको देते हैं, ठीक है। एकमात्र चैनल ऐसा है, और सिर्फ देते न्यूज़ नहीं है, आपसे सिर्फ फीस लेते नहीं हैं, आपको कमा कर भी देते हैं, डंके की चोट पर देते हैं। अब आज इतनी सारी बात हो गई, कल हंगामा हो जाएगा, कल बहुत सारे लोग फ़ोन करेंगे हमको भी इन्वेस्ट करना, हमको भी इन्वेस्ट करना है ना। तो वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे नितिन सर। रंजीत स्वामी जी बिल्कुल मिलेगा। अरे काहे के लिए कमेंट रिट्रैक्ट कर लिया? हाँ ये सही है, लोगों ने बढ़िया पैसा कमाया भाई, कोई 5 लाख है, कोई 3 लाख है, कम है लेकिन अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया आप लोगों ने। अरे ऑडियंस में इनकम टैक्स वाली बात है, यहाँ कौन सा कोई किसी का उखाड़ लेगा कुछ, ईमेल एड्रेस भी नहीं मिलने वाला, आप काहे के लिए टेंशन लिए हो, है ना। यही तो बात है। हाँ एक आया कोई 10 लाख वाला, चलो भाई थोड़ी तसल्ली हुई, ठीक ठाक कमाया भाई, कम से कम इतना तो हो, 10-1 लाख तो कमाया आदमी। कोई 20, 25, 50 वाला हो तो जरा लिखो यार, तो कुछ थोड़ा आनंद आए। अरे हो तो ही लिखना, ऐसा नहीं जबरदस्ती मैंने बोल दिया था गुरुजी कह रहे तो 50 लाख लिख दो, ऐसा नहीं, हवाबाजी नहीं, है ना। जिसने जो कमाया वही लिखे, तो अच्छा लगता है देखकर, खुशी होती है देखकर कि आप लोगों के घर में भी लक्ष्मी माता कृपा बरसा रही है, भगवान की कृपा आप सब पर भी है। खुशी होती है जब हमारे सारे परिवार के सदस्य कमाते हैं। ओह शाबाश, 1 करोड़, ये शायद इन्होंने पिछली बार 20 लाख लिखा था जिस समय कम कमाई थी। शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चेतन जी कहते हैं रिटर्न टू 50% है, 40% सेविंग से ज़्यादा सेविंग फर्स्ट टाइम। अच्छा ओके, रिटर्न टू 50% है, 40% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करी थी, शाबाश, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छा खासा होगा, है ना। नहीं परसेंट नहीं सर, अपने को तो रोकड़े से मतलब होता है, रोकड़ा कितना है, किसी ने लिख दिया 105% है, फलाना ठिकाना, है ना। नहीं जिसका मिस हो गया बस, उसमें क्या है, गया सो गया, है ना। तो कुल मिलाकर ये है, अच्छा लगता है आप लोग पैसे कमाते हो, अच्छा लगता है। हमारा काम है आपको सही सलाह देना, रोज़ सलाह थोड़ी देंगे, सट्टा थोड़ी खिला रहे हैं यहाँ पे बैठ के किसी को कि आज ये ले लो, कल वो बेच दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो। अपनी कोई ब्रोकरेज फर्म थोड़ी है, मेरे मारे ब्रोकर परेशान है, वो इतना सारा पोर्टफोलियो देखता है, बोले कुछ करता ही नहीं है आदमी, फिर फ़ोन लगाते हैं, बोले सर वो हमने आपके लिए ना टेक्निकल बंदे हायर किए और ऐसा वैसा, हम आपको ये फ्री कंसल्टेशन देंगे। मेरे ब्रोकर मेरे को बोलता है, तो 55 लाख भी है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मेरा ब्रोकर मेरे को बोला, मेरे पास फ़ोन आया कि सर हम आपको टेक्निकल टीम दे रहे हैं और ऐसा वैसा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, ये वो आपको टेक्निकली